This call is now. Okay. अभी हुआ. Yes. So today we are going to discuss about the second component of map, that is direction. Okay, you are very well aware about direction. How many directions do we have? 3. Ma'am, 8. It is 4. Ma'am, 8. Four main directions are there. Four directions. Main directions are 4, namely east, west, north and south. तो आप easily find out कर सकते हो कि कौन सी तरफ कौन सी डायरेक्शन है with the help of rising sun. Okay, sun जिस तरफ से rise करेगा that is your east and opposite to that is west and नॉर्थ एंड साउथ भी आप इजीली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एक्सपैंड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. किस बच्चे का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ रखिए. शौर्य कुमार, म्यूट योरसेल्फ. Nobody will unmute now. Otherwise, I will remove you from the meeting. Yes. So direction. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. आपने मैप्स देखे होंगे, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, इंडिया का या किसी कंट्री का, किसी टाउन का, किसी स्टेट का. तो वहां पे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे एक एरो गिवन होता है जिसपे लिखा होता है N. इस तरह का एरो लिखा होगा. That means that indicates the north direction. Yes, this arrow is indicating towards the north direction. Okay, और मैप पे ये arrow given होता है. Ma'am, and arrow is indicate the south direction. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west and south. अगर हमें कोई एक डायरेक्शन दी होगी तो इजीली हम बाकी की 3 डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे फिगर 4.1 है मैप ऑफ विलेज. इसमें आप देखोगे मैप में यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको एरो और नॉर्थ लिखा हुआ नजर आएगा. ठीक है, दैट मीन्स दिस एरो इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ऐसे ही किसी कोई भी मैप हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैप हो, थीमेटिक मैप हो या फिजिकल मैप हो, किसी भी कंट्री, किसी टाउन, किसी सिटी का, उसमें आपको ये डायरेक्शन, ये एरो लाइन जरूर नजर आएगी. और इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन. North line. Yes. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west, and south. There are 4 major directions, namely north, south, east, and west. You can see here in figure 4.2 also. Here it is E indicates the east direction, W is for west, N is for north, and S is for East, west, and south. But it is 8 direction now. This. Now these 4 main directions are known as cardinal points. इनको क्या कहते हैं? Cardinal points कहते हैं. Okay. Students, please don't repeat after me. Keep your mics mute only. मेरे पीछे रिपीट करने की जरूरत नहीं है. जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, then only you have to unmute. Other 4 intermediate directions are northeast, southeast, southwest and northwest. ये कहाँ पे है? फिगर 4.2 आप देख सकते हो. आपको एरोज गिवन है. एरोज में जो हमारी जो कार्डिनल डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इनकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन यानी इनके बीच की जो दिशा है, बीच की जो डायरेक्शन है, दिस वन. These are intermediate direction or we call them as ordinal directions. Okay, जो 4 main direction है, these 4 are known as cardinal directions and these are known as ordinal directions. Okay, ये north east हो गया, ये north west हो गया, ये south east and this is southwest. Okay, इस तरह से इनको denote किया जाता है. Understood? These are the intermediate directions. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. यानी कि अब हमें इन डायरेक्शन की क्या जरूरत पड़ी? These 4 directions will be enough for us. But नहीं, अगर हमें किसी भी प्लेस को, किसी जगह को एक्यूरेटली बिल्कुल सही लोकेट करना है तो उसके लिए हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन हेल्प करती है. ओके, जस्ट सपोज कोई सपोज देयर इज अ प्लेग्राउंड ओवर हियर
तो आप कैसे बोलोगे कि क्या डायरेक्शन है प्लेग्राउंड की? जस्ट सपोज हियर इट इज योर होम, यहाँ पे आपका हाउस है, तो हाउस के रिस्पेक्टिव में प्लेग्राउंड जो है कौन सी डायरेक्शन में है? इट इज नॉट इन ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, इनके अलावा कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए किसी भी प्लेस की एक्यूरेट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की, और हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल डायरेक्शंस। यस, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। अब फिगर 4.1 क्या है? ये मैप है। इस मैप में कुछ प्लेसेस की आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, यानी विकास के हाउस जो है उसे मिडिल में रखना है, उसके रिस्पेक्टिव में कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन क्या है? अक्षय विल टेल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी वेयर इज विकास हाउस। दिस इज विकास हाउस एंड it is community center. So what is the direction of community center in respect of Vikas house? Ma'am, north. No, I am asking to Akshay only. Yes, it is north. North. Very good, Akshay. Very good. Correct one. Next is, yes, Shaurya Kumar will tell playground from Vikas house. See here, here it is Vikas house. Northeast. Yes, very good. It is northeast. Okay. Next is, who will tell me? Okay, Khushi Kumari. Yes, Hardik Prajapati. Okay, ready for your question? The direction of school from shops. The direction of school from shops. ये शॉप्स है यहाँ पे और ये रहा स्कूल ब्लू कलर के बॉक्स में। कौन सी डायरेक्शन? स्कूल। रिपीट योर आंसर। मैम वेस्ट। गलत। ईस्ट। मैम वेस्ट। मैम ईस्ट। मैम आंसर इज ईस्ट। ईस्ट में है बेटा। ये देखो, ये कार्डिनल डायरेक्शन। स्कूल तक। Listen to me first. Very good, Anshul. Kindle, it is east. Correct one. Nobody will unmute now. यहाँ देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे फिगर 4.2 में कार्डिनल डायरेक्शंस का एक एरो गिवन है, राइट? तो हियर इट इज ईस्ट, वेस्ट। यहाँ देखो मैप के यहाँ पे हमें नॉर्थ लाइन गिवन है। ओके, अगर नॉर्थ ऊपर है दैट मींस ईस्ट विल बी हियर, वेस्ट विल बी हियर एंड ऑपोजिट इट इज साउथ। ओके, अब हमारा क्या पूछा है? विकास के हाउस, सॉरी शॉप्स। शॉप्स का लोकेशन कुछ इस तरफ है। स्कूल इज हियर जस्ट इन फ्रंट ऑफ दी शॉप्स। तो शॉप्स के रिस्पेक्ट में स्कूल कौन सी डायरेक्शन में? स्कूल की डायरेक्शन पूछी। अच्छा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि मैम शॉप तो वेस्ट में है, राइट? रीड द सेंटेंस केयरफुली। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। शॉप से स्कूल कौन सी डायरेक्शन में? ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, ईस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है मैम। ईस्ट में पढ़िए। ओके, अंडरस्टूड दिस वन? यस मैम। यस मैम, अंडरस्टूड। यस मैम। Okay, very good. Now we can find out the direction of a place with the help of a compass. Now what is a compass? It is an instrument used to find out direction. यहाँ पे इस लाइन को नोट डाउन करेंगे। Used to find out main directions, यानी सिर्फ मेन डायरेक्शंस को ही इंडिकेट करेगा। आप कंपास की एक पिक्चर पे यहाँ देख सकते हैं। I have underlined it. Okay, very good. Now its magnetic needle always points towards north-south direction. Figure 4.2 B part. So here you can see a compass. Now most of the students get confused, ma'am, how this compass works? कैसे हमें डायरेक्शन पता चलती है? क्या है कंपास में ऐसा कि वो ऑटोमेटिक डायरेक्शन बताता है?
I have used the compass in my project. Very good, Divjot. So Divjot, can you tell me the working of a compass? Divjot, can you tell me the working of a compass? Yes or no? Ma'am, yes, because it is magnetic. Nobody will speak, Akshya. Don't unmute yourself until your name is called from here. Ma'am, this is a compass. Yes. Okay. So, सभी पिन कर लीजिए इसका वीडियो. Wait a minute. Yes, Divjot is showing you the compass. Yes, Divjot, show the compass again to all your classmates. Very good. आप देख रहे हो उसमें रेड कलर का निडल है, निडल का पॉइंट रेडली पेंटेड है. ओके, और जो नॉर्थ है वो भी एन जो उसका लिखा है वो भी रेड कलर में लिखा है. दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक निडल है इसका जो रेड पॉइंट है निडल का वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच दिवजोत. कैन यू टेल मी नाउ द वर्किंग ऑफ दिस कंपास? वर्क कैसे करता है कंपास? Don't know? Yes, Divjot, I'm asking to you, can you tell me the working of the compass? Yes or no? Ma'am, it shows the direction like north, south, east. But how? कैसे दिखाता है ये? That's what I'm asking. इसमें कोई मशीन है या क्या है इसमें ऐसा? Okay, no problem. I will tell you. Ma'am, can I tell? Who is telling? Earth's natural magnetical fields. Hanshal is telling. Hanshal is telling. Ma'am, please, can I tell? Ma'am, please. Don't speak like this. Just raise your hands. I can see you. Just raise your hands only. Hardik Prajapati, don't unmute. Yes, Hanshal, please repeat your answer. A compass works by detecting and responding to Earth's natural magnetical fields. Very good, Hanshal. This is the correct one. As we have discussed a lot about Earth, हमने Earth के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, right? हमने Earth के बारे में ये पढ़ा कि Earth में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल भी होता है. तो अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है. ठीक है, जैसे हम लोग हैं वो अर्थ से हमारी लैंड से कैसे अटैच है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ओके, हर चीज जो है लाइक अगर पेड़ से कोई फ्रूट गिरेगा तो वो नीचे गिरता है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ऐसे ही जो अर्थ के सराउंडिंग है यहाँ पर क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, जो भी चीज इस मैग्नेट फील्ड में आती है उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अंडरस्टूड? कि अर्थ की खुद की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. और जब भी हम एक मैग्नेट को, कोई मैग्नेट किस तरह की होती है? इस तरह की. दिस इज अ मैग्नेटिक बार. इसका ये नॉर्थ पोल कंसीडर कर लेते हैं और ये साउथ पोल. ओके, व्हेन यू फ्रीली सस्पेंड दिस मैग्नेट, दिस विल ऑलवेज अलाइन this north towards the geographic north pole. Geographic north pole means I am saying about the north pole of the earth. Okay, this is also known as geographic north pole and this is as geographic south pole. तो जब भी हम इस मैग्नेट को एक वायर से या थ्रेड से अगर हम इसको लटका देते हैं, फ्री सस्पेंड कर देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, तो जो ये घूमेगा, मैग्नेट घूमने के बाद अलाइन करेगा यानी रेस्ट करेगा. तो जिसका नॉर्थ डायरेक्शन जिस भी तरफ होगा वो किस तरफ शो करेगा? इस ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ शो करेगा हमेशा. क्यों सिर्फ नॉर्थ की तरफ नॉर्थ ही शो कर रहा है और साउथ की तरफ साउथ? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, when we suspend a magnet freely, you will see it always aligns in such a way that north pole of the magnet will always show the geographic north pole of the earth. Okay, and the south pole of the magnet will always align with the geographic south pole. Yes, जो navigators थे, navigators while navigating the oceans constructed device known as compass. जो Chinese थे,
चाइनीज नेविगेटर्स थे जो ओशियंस में, सीज में ट्रैवल करते थे, उन लोगों को डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। ओके, उन्हीं लोगों ने इस डिवाइस का क्या किया था, इन्वेंशन किया, और उन्होंने इसका वर्किंग भी लोगों को बताया। there was a network issue. Okay. Yes, so understood about the working of the compass. जब भी आप कभी डायरेक्शन आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो क्या करना है, एक कंपास लेना है, उसको लेके खड़े हो जाना है, फिर उसको रोटेट करोगे, जैसे जैसे आप राउंड राउंड घूमोगे वैसे ही वो इसकी जो मैग्नेटिक निडल है कंपास की वो भी फ्लक्चुएट करेगी। ओके, और ऐसी जगह पे रुक जाएगी जब वहां पे उसको नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगा। यस, तो ये जो येलो कलर की निडल है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक निडल, ये एक मैग्नेटिक निडल है। ओके, सो दिस वाज द कंपास एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक डायरेक्शन। ओके, इसमें ऐसा डेफिनेशन लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मैप, दैट इज सिंबल्स। अब सिंबल्स की बात करेंगे हम। यस, it is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. यानी कि जो कार्टोग्राफर्स थे वो इतने ह्यूज एरिया को, अर्थ के इतने बड़े पोर्शन को एक छोटे से मैप में इतनी डिफिकल्टीज के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें अब हमें बिल्डिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बिल्डिंग की एक्चुअल शेप या एक्चुअल साइज को वहां पर ड्रॉ कर सकें। किसका माइक ऑन है? पलक सैनी, म्यूट योरसेल्फ। यस, तो छोटे से पीस ऑफ पेपर पे एक बिल्डिंग, रोड या ब्रिजेस की एक्चुअल शेप और साइज को रिप्रेजेंट करना इट इज इम्पॉसिबल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइन्स। इसीलिए क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लेटर्स यूज करते हैं। जैसे कि जस्ट सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट पोस्ट ऑफिस, अभी हमने मैप देखा था विलेज का, उसमें PO लिखा था, दैट मीन्स दैट पोस्ट ऑफिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दी 2 लेटर्स, दैट इज P and O। ओके, सिमिलरली अगर हमें रेलवे लाइंस को या रेलवे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करना है तो RP हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, वेल है, इनके लिए हम कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम यूजुअली बच्चे जब ड्राइंग करते हैं तो रिवर कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, ट्रीज किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह। सो दीज आर बेसिकली सिंबल टू रिप्रेजेंट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मैप। यानी अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। इनके लिए लेटर्स यूज कर सकते हैं, शेड्स हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स हैं, पिक्चर्स है, और कुछ लाइन से भी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। These symbols give a lot of information in a limited space. अब इनकी क्या क्या बेनिफिट है हमें सिंबल से, कि ये सिंबल्स बहुत छोटे होने के बावजूद भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। When the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. यानी इसको हर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो 1st क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, अगर आप उसके सामने इस तरह से एक हाउस ड्रॉ करोगे और उसके ऊपर एक ऐसा फ्लैग लगा दोगे तो वो इजीली रिप्रेजेंट आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये किसी ना किसी टेम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसी तरह से अगर हमें मॉस्क का रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से यहाँ पर हाफ मून की पिक्चर ड्रॉ कर दोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सिंबल किस पर्टिकुलर बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिंबल्स की वजह से मैप्स को रीड करना बहुत ही इजी हो जाता है। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols.
अभी तो हमारे फोन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम आ गया, नेविगेशन सिस्टम हमारे मोबाइल फोन में है, जो न्यू कार्स लॉन्च हो रही है उनमें सब कुछ है। तो अभी हम लोग मैप्स को बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन एशियन टाइम में जब नेविगेशन सिस्टम नहीं था, जब इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो जब भी लोग या एडवेंचरर्स ट्रैवलर्स जो होते थे अपनी बाइक्स लेके निकल जाते थे ट्रैवलिंग के लिए फॉर देयर इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट था न्यू प्लेसेस को इन्वेंट करना, फाइंड आउट करना, वहां ट्रैवल करना, तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर प्लेस का एक मैप रखते थे अपने पास। ठीक है, उस मैप के अकॉर्डिंग ही अपना रूट वो चूज करेंगे कि हमें इस हाईवे से जाना है या इस जगह से जाना है। वहां उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो सपोज अगर हम राजस्थान के हैं, हमें साउथ में किसी प्लेस पे विजिट करना है, हमें वहां घूमने जाना है, और हमें वहां के जो लोकल पीपल है उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो इट इज नॉट अ डिफिकल्टी इफ वी हैव मैप विद अस। अगर हमारे पास मैप है तो हमें किसी से डायरेक्शन पूछने की जरूरत नहीं है, हमें ये भी टेंशन नहीं है कि हमें इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। हम इजीली मैप में सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। यानी अब मैप जो है, कहीं भी आप जाओगे, चाहे वो साउथ के किसी प्लेस का मैप हो, नॉर्थ का, नॉर्थ ईस्ट का, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का, राजस्थान का मैप हो, सभी में यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज की जाती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज मीन्स यूनिवर्सल सिंबल्स। यानी अगर आपको वेल रिप्रेजेंट करना है या फिर एक ट्री रिप्रेजेंट करना है, रेलवे लाइन रिप्रेजेंट करनी है मैप पे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है जो कि हर मैप में यूज किया जाएगा। There is an international agreement regarding the use of these symbols। यानी इंटरनेशनल लेवल पे इन सिंबल्स को यूज करने के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, कि चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी टाउन हो, कोई भी सिटी हो, वहां पर उस पर्टिकुलर मैप में सेम सिंबल्स ही यूज किए जाएंगे। और इन्हीं सिंबल्स को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स। Some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3. Here you can see, यहाँ पे सारे कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो यूनिवर्सली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर टेम्पल को यूनिवर्सली कहीं पे, चाहे रशिया का टेम्पल हो, चाहे जापान का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी स्टेट का हो, उनके लिए यही कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। यानी कि साउथ का पर्सन जो है वो भी इजीली इनको रीड कर सकता है मैप को, जम्मू कश्मीर में रहने वाला भी, असम में रहने वाला भी। ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है। यू कैन सी रेलवे लाइंस, पहले में रेलवे लाइंस की पिक्चर्स सिंबल गिवन है। योर वीडियो इज स्टक, कैन आई रीजॉइन? यस वैष्णवी, यू कैन रीजॉइन द क्लास। ओके, so carefully observe these symbols। आपको ये सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कलरफुल सिंबल्स हैं, लेटर्स भी यूज किए हैं, लाइंस भी यूज की हुई हैं। ओके, और कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ की हैं। देखो वेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रॉड ब्लैक कलर का डॉट है, रिवर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल है, कैनाल का सिंबल अलग है, ब्रिज का सिंबल अलग है। एंड ऑब्वियसली यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द रोड साइंस। रोड साइंस भी आपने देखे हैं, तो रोड साइंस भी क्या है? यूनिवर्सल है। ओके, स्पीड ब्रेकर का साइन सिमिलर है, नो पार्किंग एरिया का साइन सिमिलर है। इन द सिमिलर वे दीज कन्वेंशनल साइंस आर आल्सो यूनिवर्सल। ओके, ये आपको याद होने चाहिए सारे सिंबल्स। नेक्स्ट वन, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर दी सेम पर्पस। बहुत सारे कलर्स यूज किए जाते हैं सिंबल्स को ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। यानी ये कुछ जनरल कलर्स हैं। जैसे ऑब्वियसली ब्लू कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट दी वाटर बॉडीज, हम ग्लोब में भी देखते हैं, तो ग्लोब में जो ब्लू पोर्शन है वी कंसिडर दैट एज दी वाटर पार्ट। ठीक है, ये वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं। ब्राउन कलर से अगर कोई मैप में कोई पिक्चर है, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग माउंटेन्स, एंड येलो इज फॉर प्लेट्यूज, ग्रीन इज फॉर प्लेन्स, और वी कैन से ट्रीज। इनके लिए प्लेट्यूज मींस क्या होता है? प्लेट्यूज मीन्स क्या होता है? प्लेट्यूज मीन्स देखो, एक तो ये आपका लैंड है, ठीक है, हाउसेस। नो वैष्णवी, only take the permission to, yes, just suppose this is your house, there is a hill also,
यहाँ पे पहाड़ है, और एक पोर्शन ऐसा है जो इस प्लेन से, ये तो है हमारा प्लेन एरिया, ओके। एक पोर्शन ऐसा होता है जो इस तरह का होता है, फ्लैट है बट इट इज एट अ हाइट फ्रॉम दिस प्लेन, यानी प्लेन एरिया से थोड़ी सी हाइट पे है, ठीक है, बट ये हिल नहीं है, इट इज फ्लैट, इट इज नॉट कोन शेप, दैट दिस लैंडस्केप इज नोन एज फ्लैट प्लेन। ओके अक्षया? Okay, ma'am. Yes, very good. So we have completed the three components: direction, Yes, ma'am. distance, and symbol. Any doubt in it? Another is No, ma'am. No, ma'am, no doubt. no, ma'am, no No doubt. doubt? No